Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are enjoying sound health. We are discussing our next test at the platform of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. This is a complete e-learning app, my dear students, and you will get maximum benefit out of this app if you use it properly and you attempt your test very soundly. डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टेस्ट को डिस्कस करने चाह रहे हैं इसका नाम जो है वो E1B है। जैसे E1A सीरीज़ चली इसी तरह E1B सीरीज़ है। और डियर स्टूडेंट, इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू PMC प्लेटफॉर्म हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को जो है वो वहाँ पर डील किया, और यहाँ पर बी सीरीज़ में हम जनरलाइज करेंगे चीज़ों को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को जो है वो बी सीरीज़ के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ में जो है वो इनको अकोमोडेट करेंगे ताकि आपकी मैक्सिमम प्रेपरेशन इस एक एंगल से भी हो जाए। जैसे हमने E1A सीरीज़ के अंदर जो है वो टॉपिक वाइज बहुत सा काम किया, टेस्ट जो है वो डिस्कस किए। अब E1B सीरीज़ में जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, डिफरेंट मोड्स ऑफ क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। लुक एट द वेरी फर्स्ट MCQ इज़ ऑन द स्क्रीन। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अकॉर्डिंग टू PMC प्लेटफॉर्म हमें इस एक एंगल को भी जो है वो मद्देनज़र रखना होगा और तमाम एस्पेक्ट से जो है मल्टी फेसेटेड, मल्टी डायमेंशनल अंदाज में हमें आगे बढ़ना होगा ताकि हम हर एक एंगल से हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को जो है वो PMC के प्लेटफॉर्म पर जो है अटैम्प्ट कर सकें और मैक्सिमम स्कोर को सिक्योर कर सकें। MCQ नंबर 1 आपके पास सामने आ गया। इसमें क्या है इंस्ट्रक्शन? चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। माय डियर स्टूडेंट, आई ऑलवेज try to make you people ensure that whenever you are inclined to attempt your questions or test, you first of all keep in your mind the very important and significant thing. Significant thing is what? Actually it means the instruction of the question. First of all you have to focus on the instruction and later on you may start attempting the question according to the set pattern of the rules. तो ज़रा देखिए इंस्ट्रक्शन क्या, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, और इसके मुताबिक अल्फ़ा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा में देखते हैं बेस्ट स्पेलिंग कौन से हैं। समथिंग अल्फ़ा में और बीटा में समथिंग, इसमें जो है वो ई मिसिंग है लास्ट में और एम के बाद भी। इसमें चार्ली में समथिंग, ये एक और टाइप ऑफ जो है, लेकिन पढ़ने में जो है वो साउंड में जो है ये ठीक लगते हैं, लेकिन जो है स्पेलिंग में इशू है। डेल्टा में समथिंग के स्पेलिंग कुछ और हैं। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जो है वो नॉलेज, अल्फ़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड द कंप्यूटर्स आल्सो सपोर्ट्स दिस। नेक्स्ट MCQ में चलते हैं, MCQ नंबर 2 में, और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन के चूज़ द करेक्ट सेंटेंस एंड here we have 4 sentences all together and what we have to do, we have to find out the best option which has no error at all, and the rest of the 3 options definitely have a little bit or minor type of problems or faults. So we have to collect, we have to find out the best option. Look at the very best option is beta. It is free from all types of error. And how is it best? Look at it. Belgium and France both are the names of the countries. That's why they are proper noun and they begin with the capital letter B and F. Fought over. Belgium and France fought over who would host the Olympic Games. And now you know Olympic Games is a proper noun. This is a very well known name. That's why both the letters which begin the both words are capitalized. Olympic O and Games G. Just like Belgium B and France F. These are proper nouns. That's why we have written them in capital. Always proper noun, either it comes in the beginning, middle or end of an expression, it has to be capitalized. Same is the case in beta option. So that's why there is no error at all. We can say beta is the best one. And look at the alpha option. What is the error here? Belgium and France fought over who would host the Olympic Games. Here you know Olympic and Games both are written here in small letters. That's an error. That's why we leave it and we shift our attention from Alpha to Charlie. Belgium and France fought over who would host the Olympic Games. There is 3 errors. There are 3 errors altogether. One is here after France we have punctuated here colon, and there is no need at all to punctuate colon. This is actually a punctuation mark and it does not have any value to be accommodated over here. And the second error here occurs
in Olympic Games. G is small. And the third and last very important error that has occurred there in the end of the expression, that is another punctuation mark, which is sign of exclamation. It has no value over here because this sentence does not need any exclamation mark in the end of the expression. That's why this is also collapsed. Now we shift our attention from Charlie to Delta. What comes here? Belgium and France fought over who would host the Olympic Games. Here, my dear student, there is no problem except the last two letters, that words, Olympic O and Games G. Now we have to shift our attention from this MCQ to another. MCQ number 3 में चलते हैं. Look at the statement, hurry up our train blank at platform 3. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो वेटिंग हो नहीं सकता क्योंकि विदाउट ING है और वेट्स जो है वो रूटीन मैटर लगता है. इस वेटिंग जो है वो लगता है कि कोई काम जो है वो बस होने वाला है. विल बी वेटिंग होना चाहिए था, जस्ट विल वेटिंग हो नहीं सकता. सो दैट्स वाई हम चार्ली को प्रोजेक्ट करेंगे. नेक्स्ट MCQ में चलते हैं. MCQ नंबर 4 में, What tense is the verb in this sentence? I'll take you in my car. I'll take. I'll के साथ जो है वो shall लगा है या will लगा है, तो ये शो किस टेंस को करता है, ये इंस्ट्रक्शन हमें देखनी है कि चारों में से कौन सी ऑप्शन इसके मुताबिक है. प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है या नन ऑफ दीज है. डेफिनेटली ये फ्यूचर टेंस है. चार्ली ऑप्शन है क्योंकि आई शैल टेक से पता चला कि फ्यूचर टेंस है. तो बेस्ट ऑप्शन चार्ली हुई. नेक्स्ट MCQ में चले नंबर 5 में, द स्टूडेंट्स अकम्पनीड बाय दियर टीचर ब्लैंक गॉन ऑन अ पिकनिक. यहाँ पर 4 ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, और देखते हैं कि द स्टूडेंट्स अकम्पनीड बाय दियर टीचर. अकम्पनीड बाय से पहले वाले वर्ड को हमने सिग्निफिकेंस देना होगी. अकम्पनीड बाय या एज वेल एज या टुगेदर विद या विद के साथ 2 डिफरेंट नाउन्स को जोड़ेंगे तो पहले वाले नाउन की जो है फॉर्मेशन फंक्शन और उसकी जो है वो तादाद के मुताबिक हमने वर्ब जो है वो चूज़ करना होगा. तो द स्टूडेंट्स प्लूरल है, दियर टीचर सिंगुलर है, तो इसलिए अकम्पनीड बाय से पहले आने वाला नाउन द स्टूडेंट्स प्लूरल होने की वजह से हैज़ अल्फ़ा ऑप्शन आ नहीं सकता. हैव बीटा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जो है वो आगे थर्ड फॉर्म है गॉन, तो हैव के साथ गॉन लग सकता है. आर के साथ गॉन इसलिए नहीं लग सकता, ये पैसिवाइज स्ट्रक्चर हो जाएगा, जबकि सेंटेंस एक्टिवाइज है, वॉज लग नहीं सकता. तो बीटा बेस्ट ऑप्शन लगती है डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट MCQ में चलते हैं. यहाँ पर नंबर 6 में पढ़ते हैं, ईच एंड एवरी मेंबर ब्लैंक टू वोट. अब यहाँ पर आपको मालूम है ईच और एवरी दोनों जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जब ये आ जाए सेंटेंस में तो फिर ये सिंगुलैरिटी को प्रोजेक्ट करते हैं. तो गौर से देखिएगा, ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ टू वोट हो सकता है, हैव टू वोट हो नहीं सकता, हैविंग बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि ING इसके साथ है और पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं है. आर इसलिए नहीं आ सकता कि ये प्लूरल हो गया है. तो ईच एंड एवरी की वजह से हैज़ अल्फा ऑप्शन बेस्ट है. ओके, नेक्स्ट MCQ में चलें. हम टेंसेस को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देंगे इस सारे पोर्शन में जब हम B सीरीज़ को कर रहे होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू PMC जिन जिन टाइप्स के जो है वो MCQs बने हैं हम उनको आपके साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके. नंबर 7 में, यू ब्लैंक अगैन व्हाट्स द प्रॉब्लम. और यहाँ पर जो है देखते हैं यू के साथ कौन सा जो है वो वर्ब आ सकता है. यू क्राइंग कभी हो नहीं सकता, यू के साथ क्राइज आ नहीं सकता एस फॉर्म, ठीक है, यू के साथ नहीं आता. यू आर क्राइंग हो सकता है, यू इज़ कभी पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई चार्ली ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है. और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट. नंबर 8 में परमिसिव. यहाँ पर हमें सिनोनिम जो है वो फाइंड आउट करना है परमिसिव का. तो आप देखें रिलैक्स्ड, यहाँ पर जो है वो रिलैक्स सिंपल वर्ड है. लीनियंट का मतलब जो है बहुत ज़्यादा नरम खू होना, किसी को कुशन देना, किसी को सॉफ्ट अंदाज में डील करना. अनग्रजिंग, ग्रज होता है ना किसी के लिए दिल के अंदर बहुत बुग्ज रखना. अनग्रजिंग बगैर बुग्स के होना. इमोरल यानी लाफानी हो जाना, तो नहीं सॉरी, इमोरल से मुराद होता है कोई गैर अखलाकी हरकत होना. मॉरल अखलाकी है और इमोरल जो है इसका एंटोनिम बन जाता है. तो बेस्ट ऑप्शन आपको मालूम है लीनियंट बनती है. परमिसिव और लीनियंट एक ही मतलब है, यानी रहम होना, बहुत ज़्यादा किसी को मुआफ़ करने का जज्बा होना. 9 में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई है जो 4 डिफरेंट प्लेसेस से जो है अंडरलाइन की गई है. वी हैव अ स्टेटमेंट विच has been underlined at 4 different places with the name of option number alpha, beta, Charlie and delta. What we have to do, we have to find out the error statement. I mean हमें यहाँ पर ऑप्शन देखनी होगी जिसमें एरर बाकी 3 ठीक होंगे तो वो हमारा स्कोर होगा. Many people argue
मैनी पीपल प्लूरल है, आर्गू ठीक है, डैट अ लार्ज डिफेंस बजट, लार्ज डिफेंस बजट बिल्कुल ठीक है, इज भी उसके साथ आया, नेसेसरी, इन ऑर्डर टू भी ठीक है, टू मेक द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रॉन्गर दैन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कंपैरिजन किया गया दैन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, दैन एनी कंट्री नहीं होगा, दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक खुद कंट्री है, इसलिए वर्ल्ड में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही कंट्री नहीं है, दैन एनी अदर, यहाँ पे अदर मिसिंग है तो वो आ जाएगा दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो फिर ठीक हो जाएगा, डेल्टा में एरर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्टन फॉर्म आई हैव की क्या बनती है, क्या आईव है अल्फ़ा में, आईव बीटा, या आई हैव चार्ली, या आई डेल्टा, तो बेस्ट ऑप्शन आपको मालूम है अल्फ़ा ही है, शॉर्टन फॉर्म है आई हैव की। और फिर देखते हैं नंबर 11 में कौन सी वाली ऑप्शन बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर सेंटेंसेज इज़ करेक्ट, अल्फ़ा इज़ द बेस्ट, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू द सिनेमा, आपको मालूम है कि फ्यूचर प्लान के लिए हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल की बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ कर सकते हैं, तो फ्यूचर इंटेंशन है नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू द सिनेमा, बीटा में नेक्स्ट वीक आई विल गोइंग टू, आई विल के साथ गोइंग नहीं आ सकता जबकि बी ना आ जाए, फिर चार्ली नेक्स्ट वीक आई इज़, आई के साथ इज़ नहीं आ सकता, डेल्टा नेक्स्ट वीक आई वेंट टू, नेक्स्ट वीक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को शो करता है तो उसके साथ जो है वो वेंट नहीं आ सकता, पास्ट नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 में देखते हैं योर पेन इज़ ब्लैंक द बॉक्स, अब देखते हैं अल्फ़ा ऑप्शन, योर पेन इज़ इन द बॉक्स होगा या योर पेन इज़ इनटू द बॉक्स, इनटू कैसे होगा, क्या क्या मूवमेंट है, फिर इनसाइड द बॉक्स ये कुछ पॉसिबिलिटी लगती है, नन कोई भी नहीं, तो चार्ली बेस्ट ऑप्शन लगती है डियर स्टूडेंट, क्योंकि योर पेन इज़ इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं, प्रपोजिशनल इशू था वहाँ पे, व्हेन आई रीच द स्टेशन, टेंसेस के मोड को याद रखें और ज़रा कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंड करें। व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये कौन सा टेंस है भाई, ये टेंस है पास्ट सिंपल का, इसके साथ कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट का, द ट्रेन ब्लैंक, लीव होगा, लीव तो फर्स्ट फॉर्म बेयर फॉर्म है, ये आ नहीं सकती पास्ट में, बीटा लीविंग बगैर आईएनजी के यानी बगैर किसी जो है वो एचवी के लीविंग हो नहीं सकता, लेफ्ट ये भी पास्ट सिंपल है, पहले हिस्से में भी पास्ट सिंपल, दूसरे क्लॉज में भी पास्ट सिंपल, ऐसा नहीं होना चाहिए, हैड लेफ्ट, ये डेल्टा इसकी बेस्ट ऑप्शन लगती है डियर स्टूडेंट, क्योंकि पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलें, आई एम गोइंग फॉर ब्लैंक वॉक इन ब्लैंक पार्क, अब यहाँ पर हमें जो है वो आर्टिकल जो है वो सूटेबल आर्टिकल चाहिए, ज़रा गौर करते हैं, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक होना चाहिए था, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क होना चाहिए, तो चार्ली बेस्ट ऑप्शन लगती है, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा नहीं, बीटा नहीं, डेल्टा नहीं, चार्ली है, क्योंकि आई एम गोइंग फॉर अ वॉक तो हो सकता है, वॉक इन अ पार्क नहीं होगा, जहाँ पे जाना है वहाँ पर वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए द पार्क होगा। आगे बढ़ते हैं एक और एमसीक्यू में, नंबर 15 में हंच के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं, अल्फ़ा है, हंच मीन हम्प, मतलब ये कि थोड़ा सा जो है वो आपकी कमर में खम आया हो, जिसे कुब कहते हैं, कुब पड़ जाना, थोड़ा सा बेंड हो जाना बॉडी का, स्टूप हो जाना, स्ट्रेच किसी चीज़ का फैल जाना, स्ट्रेटन सिंपल वर्ड है, सीधा करना, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा तजस्सुस को बोलते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा है। नंबर 16 में देखते हैं, विच टेंस इज़ यूज्ड, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वर्ड यस्टरडे मार्कर है, वेंट पास्ट फॉर्म है, इसलिए पता चला ये टेंस पास्ट है, अल्फ़ा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलें, यहाँ पर नंबर 17 में, विल यू हैव ब्लैंक एप्पल, ब्लैंक पियर और ब्लैंक ऑरेंज, अब यहाँ पर आर्टिकल हमें रिक्वायर्ड हैं, गौर करते हैं, बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारी बीटा है, विल यू हैव एन एप्पल, क्योंकि एप्पल जो है वो साउंड है, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन सप्लाई करना होगा, तो इसका जो वॉवल साउंड है उसके मुताबिक एन ले लिया, एन एप्पल, और उसके बाद पियर, पियर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आ गया उसके साथ, और ऑरेंज, ऑरेंज अगेन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है बल्कि वॉवल साउंड है तो एन आ गया, एन ए एन का कॉम्बिनेशन यहाँ बीटा में बना, बाकी सब में एरर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चले, नंबर 18 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है, पढ़ते हैं, आई कांट सी
टिम्स कार, टिम के साथ कार है, दोनों नाउन हैं और दोनों के दरमियान अपॉस्ट्रॉफी है, टिम्स कार, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेमी कॉलन से सेपरेट कर दिया, एक और क्लॉज इसके साथ जोड़ दी। ये कंपाउंड बेसिकली टाइप ऑफ सेंटेंस है, देयर मस्ट हैव बीन एन एक्सीडेंट। तो अब अल्फा में चलें, आई कांट सी टिम्स कार, यहाँ पे कॉमा है और आपको मालूम है कॉमा जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज़ नहीं होता। फिर बीटा में चले, आई कांट सी टिम्स कार, अगेन इशू आ गया कॉमे के साथ। चार्ली, आई कांट सी टिम्स कार, देयर मस्ट हैव बीन एन एक्सीडेंट, यहाँ पर कोई भी सेपरेटर नहीं यूज़ किया गया, इसलिए ये रन ऑन एक्सप्रेशन बन गया और चार्ली इसलिए कोलैप्स कर गया। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं नंबर 19 में, दिस समर आवर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल। और मालूम करें कि ये कैसा सेंटेंस है, क्या कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है डियर स्टूडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये सिंपल सेंटेंस लगता है, बीटा इसकी बेस्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 20 देखते हैं, नीदर मी नॉर माई पेरेंट्स ब्लैंक अवेयर ऑफ द इंसिडेंट। अब देखें, आपको मालूम है कि दो नाउन्स, ये दो प्रोनाउंस, ये दो एंटिटीज़ हों और नीदर नॉर से जोड़ा जाए उनको, तो फिर हम सेकंड वाले नाउन को इंपॉर्टेंस देते हैं। माई पेरेंट्स प्लूरल है, इसलिए हम जो है प्लूरल ही वर्ब इसके लिए रिक्वायर करेंगे। वुड बी नहीं होगा, इज़ बिल्कुल नहीं हो सकता, वॉज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वर इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बनती है डियर स्टूडेंट, डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ EB1 और आई होप कि आप इसमें से मैक्सिमम जो है बेनिफिट लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।